Hello students. Now in this second video we are going to study about the mechanism of respiration. We had already studied about the organs of respiration. Now here we are going to study about the details of mechanism of breathing. Now this process includes the various things. First one will be the breathing, then there will be the external respiration, then internal respiration, and then we'll be seeing the cellular respiration. This will not be in much detail because we have already studied about that in the previous class. First of all, we'll be dealing with the breathing. Okay. Now, it is a basically physical process. There's no chemistry involved in this. So it is, first of all, you should know that it is a physical process and it involves the following parts of our body. The first is the thoracic cage. Here you can see this is the thoracic cage, which includes the ribs. These are the ribs. You know there are 12 pairs of ribs. Last year you have studied the skeleton and locomotion chapter in 11th. So you know what are the different types of ribs: true ribs, false ribs, floating ribs. So these are the ribs. Then you have the sternum. This is the sternum. Sternum is basically called as the chest bone or the breastbone here, to which the one side of the rib is attached, the sternal end, and then the other side these ribs are attached to the vertebrae. Okay, so this becomes the ribs. Then you have the sternum. Then you have the intercostal muscles. Here in the side view you can see here the intercostal muscles. These intercostal muscles are present in between the ribs. Okay, and then you have the diaphragm. Here is the diaphragm. Backside you can see here it is showing the backside, which is dome shaped normally, and when it contracts it becomes flat shape. So there are the things which are involved in the breathing process are thoracic cage, ribs, sternum, intercostal muscles, and the diaphragm. Okay, now we are going to see the mechanism, basically what is inspiration and what is expiration. Now, one thing you have to remember is air always moves from a high pressure area to a low pressure area. Air moves from a high pressure area to a low pressure area. Okay. Next, what do you do when you inspire, when you inhale? इनहेल जब आप एयर अंदर लेते हैं तो नेचुरली एयर का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा और अंदर कम होगा, तभी एयर क्या होगी, आगे से पीछे जाएगी, बाहर से अंदर आएगी. प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्चुअली. सो बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर कम है, तो एयर अंदर आएगी. एयर बाहर कब जाएगी, जब अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया है और बाहर कम है, तो यहाँ से एयर जो होगी वो बाहर जाएगी. एयर फ्लोज आउट. हियर यू कैन सी इन इनहेलेशन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर and pressure in lungs is less. Here it is more and here in lungs it is less. Okay, so air moves in and the opposite is true for exhalation. Now in this process what all happens, you have to know that you have already known that you know that what are the things involved. So what happens during inspiration? Inspiration, यहाँ पे वॉल्यूम कैसे बढ़ जाता है लंग्स का, क्योंकि सबसे पहले वहाँ डायाफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाता है. जो डोम शेप्ड नॉर्मली रहता है उसकी जगह वो फ्लैटन हो जाता है. डायाफ्राम फ्लैटन हो जाता है. उसके बाद दूसरी चीज जो है वो है आपके रिब्स की, थोरैसिक केज, और जो रिब्स हैं ये रिब्स बाहर की तरफ खुल जाते हैं, ऐसे मूव हो जाते हैं. तो ये रिब्स बाहर की मूव हो गए, डायाफ्राम नीचे हो गया, तो नेचुरली जो बीच का एरिया है वो बढ़ गया. जब यहाँ का वॉल्यूम बढ़ गया तो नेचुरली एयर क्या होगी, बाहर से अंदर आने लगेगी. सो दिस इज व्हाट इट इज इन इंस्पिरेशन. एक्सपिरेशन में क्या होगा, डोम शेप, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वापस डोम शेप्ड बन जाएगा, डायाफ्राम बन गया डोम शेप्ड. रिब्स जो हो गई वो वापस इनवर्ट्स हो गई, कॉन्ट्रैक्ट होके इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से दे मूव इन. तो यहाँ का एरिया जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कम हो गया. कम हो गया इसका मतलब क्या होगा, एयर जो है वो बाहर पुश हो जाएगी, एयर विल बी फ्लोड आउट. सो दिस इज अबाउट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. नाउ थोड़ा सा उसमें ध्यान देने वाली बात है, इसलिए हम वापस से एक बार रिवाइज करेंगे. ये जनरली क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स को आ सकता है फॉर गिविंग द comparison or the difference between the inspiration and
expiration. As you can see in this also figure you are being shown that कैसा होता है, inspiration होता है तो diaphragm देखो contract होके flat हो जाता है, जब expiration होता है तो वापस diaphragm जो होता है वो dome shaped बन जा रहा है. Now here we are going to see one by one what are the different comparative points of inspiration and expiration. First of all, you should know inspiration is an active process. What do you mean by active process? It involves energy. Energy की खर्चा होता है energy का, तब उसको हम बोलते हैं ये active process है. Okay, so it is an active process. Here it is a passive process, यानी यहाँ पे कोई energy नहीं लग रही. Normally by diffusion जो होता है वो air बाहर exhale हो जा रही है. ठीक है. अभी इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो साइड्स के मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं. ठीक है. उसकी वजह से क्या होता है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, रिब केज जो होता है बाहर की ओर मूव करता है. यहाँ पे रिलैक्स होते हैं तो वापस रिब केज अंदर की तरफ चला जाता है. ठीक है. दूसरी तीसरी बात क्या है कि डायफ्राम के बारे में हम करेंगे तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है. यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स होगा एक्सपिरेशन में और वो ओरिजिनल डोम शेप, ये याद रखो कि ओरिजिनल उसका शेप जो है वो डोम शेप्ड है. ठीक है. जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी यहाँ से पुल होगा तो उसके बाद क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगा. ओके. देन यू हैव, ये सब के कारण क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से बोलो, देन रिब केज की वजह से बोलो, एंड देन थर्ड इज द diaphragm. These 3 points lead to the fourth point, that is increase in the volume of thoracic cavity. Here there will be decrease in the volume of thoracic cavity. Okay. Then if there is increase in the volume of thoracic cavity, that will lead to the next point, which is air pressure in the lungs will be less because वहाँ का area बढ़ गया है, than the atmospheric pressure. और उसकी वजह से क्या होगा, there will be intake of air into the lungs. तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि पॉइंट वाइज एक तो हमें लिखना है डिफरेंस, कभी भी लिखना है तो, और इस पॉइंट का ऑपोजिट ही इस पॉइंट में होना चाहिए. आप ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट नहीं लिख सकते, सेकेंड पॉइंट. ओके. सो इट शुड बी अ comparative point. Secondly, one point can lead to the next point, so it is very easy to remember. You don't have to mug up, you have to understand the process and write down the points. Once again, in quick revision, we'll be seeing inspiration is an active process. There will be contraction of external coastal muscles, rib cage will be moving outwards, and diaphragm will be contracting. These three will lead to the increase in volume of thoracic cavity, because of which there will be less air pressure inside the lungs, and so the air will be taken in. Similarly, you can write the comparative points for the expiration. So by now I suppose you must be clear with the inspiration and expiration. Very important part. It comes for 2 marks. If it is coming for 2 marks, you have to write basically 4 points for comparison. Next we come to external respiration. Now this external respiration, that means it is exchange of gases at the alveolar level. External बोला तो lungs से पास में, internal बोला तो tissues के पास. ऐसा आप समझ के लिए. external का मतलब क्या है, atmospheric air और lungs. internal बोला तो टिश्यूज और ब्लड, उनके बीच में एक्सचेंज जो होगा वो हो रहा होगा. ठीक है. तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पे हम देखेंगे, इट टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्वियोलस एंड द कैपिलरी. वेयर इज द कैपिलरी? इट इज सराउंडिंग द एल्वियोलाई. इफ यू सी, दिस इज द एल्वियोलर मेम्ब्रेन इज देयर, एंड एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बाहर आप देखोगे कि वहां पे कैपिलरीज प्रेजेंट हैं. ओके. सो हियर यू कैन सी दिस इज द एल्वियोलर मेम्ब्रेन हियर, एंड देन बाहर जो आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज द blood capillary. Okay, where you can see the red blood cells by concave shape. Okay, so here what you see is oxygen diffuses from the alveoli into the capillary. ये जो oxygen अंदर आ रहा है, oxygen, this will go into the capillaries. और ये deoxygenated blood blue से दिखाया गया है, it becomes, takes oxygen and it becomes red here. Okay. Then you see that the carbon dioxide which is there in the tissues, this carbon dioxide which is coming from the tissues present here in the blood capillaries, they will move out. So this is the external respiration, where the exchange of gases takes place between the alveoli and the blood vessel.
in the lungs only. Okay, so this is external respiration. Then you come to internal respiration. It's a bit detailed here, but pay attention, you'll understand it's very simple. Now what is there in internal respiration? एक तो सबसे पहले कि वहाँ gases involved होंगी, ऑक्सीजन और CO2, और दूसरा कहाँ से एक्सचेंज हो रहा है, हमारे आरबीसीज और प्लाज्मा में ये जो हो रहा है ये एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब गैसेस दोनों हैं, ऑक्सीजन है और CO2 है। हम दोनों को एक एक बार में एक एक चीज लेके देखेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म है कि थोड़ा सा जो ऑक्सीजन है वो सीधा डिसॉल्व हो जाएगा प्लाज्मा में। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा? द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। इफ यू माइनस द ऑल द रेड ब्लड सेल्स, दैट इज प्लाज्मा। 55% ऑफ ब्लड इज हैविंग प्लाज्मा। सो 3% ऑक्सीजन ऐसे ही उसमें डिसॉल्व होके वो टिश्यूज तक पहुंच जाएगा। बाकी जो मेन 97% ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? इट विल बाउंड टू आवर हेमोग्लोबिन। वेयर इज हेमोग्लोबिन प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसूल्स। दिस इज द hemoglobin is the respiratory pigment. When it combines with oxygen it gets its red color and hence the red blood corpuscles. और actually hemoglobin में कैसा होता है? It is having high affinity for oxygen and it combines readily with oxygen. और actually एक hemoglobin molecule के पास 4 iron मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो हर मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा, तो इस तरह से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंबाइन हो सकते हैं एक हेमोग्लोबिन में। इसीलिए आप यहाँ देखोगे लिखा है हेमोग्लोबिन प्लस 4O2 बिकॉज HB is having 4 heme groups and then it combines to form HbO2, ऑक्सीहेमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सीहेमोग्लोबिन कंबाइन हो गया, आपके ब्लड में चला गया और ये ब्लड में से जाके फिर टिश्यूज में जब जाएगा तो ब्रेक करेगा, इससे HB और O2 ब्रेक हो जाएगा, हेमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो सेल्स को या टिश्यूज को चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ हो रही है? लंग में हो रही है ये वाली प्रोसेस। एंड ये वाली जो है ये टिश्यूज में हो रही है। Okay, so this is how the oxygen is carried. Very simple method. Mostly it is carried by the hemoglobin. Okay. Now there is one more concept which has been included this time in your 12th syllabus. It is the Bohr effect. Okay, now how it happens, what it is telling us. Now what is Bohr effect? If you see the follow this graph, it is there in your text also given. Here is the normal curve. The first normal curve which is there is the center one. Okay, this is the normal curve as you can see. Okay, now what happens? Normal CO2 ये आपको दिख रहा है, normal pH जो होता है हमारा 7.4 उस पे होता है कि आप ये देखो, सबसे पहले जब ऑक्सीजन अंदर आता है तो थोड़ा सा हीमोग्लोबिन को हिचकिचाहट होती है ऑक्सीजन को पकड़ने में, इसलिए यहाँ थोड़ा स्लो है। और जैसे ही एक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में अटैच हो गया, फटाफट फटाफट उसमें दूसरे ऑक्सीजन अटैच होते हैं, उसको हम कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हैं। और ये ग्राफ आप देखोगे ऊपर बढ़ता है और बाद में प्लेटो रीजन में आ जाता है। तो इट इज बेसिकली sigmoid curve or S-shaped curve in the normal region. But what happens in Bohr effect? You just see the definition here, it is written. It occurs in tissues. There is a right shift of oxygen dissociation curve. ये oxygen dissociation जो curve है, it shifts towards the right. There is a right shift of the oxygen dissociation curve here towards this side. And when does this happen? When there is a high CO2. ओके, तो व्हेन देयर इज अ हाई CO2 दिस कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट। या जैसा आप देखोगे ये लंग्स में है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिया है, जो ग्राफ है ये कैसे प्लॉट किया गया है, ये है आपका ऑक्सीजन का प्रेशर जो है पार्शियल, और यहाँ पे लिया गया है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दैट मीन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर एसोसिएटेड विथ HB, दिस शोज हियर। ओके, दिस इज द ऑक्सीजन, कितने मॉलिक्यूल्स जुड़ गए हैं। तो जब करीब 100 या 104 प्रेशर ऑक्सीजन का रहता है तो यहाँ से करीब 98% जो होता है वो सैचुरेशन हो जाता है, यानी सारे मॉलिक्यूल्स करीब करीब हेमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं। अभी हम यहाँ देखते हैं कि ये शिफ्ट राइट में कब होगा, जब वहां पे हाई CO2 होगा या टिश्यूज में आप पहुंच जाइए। तो टिश्यूज में क्या होता है, CO2 निकल रहा है ऑक्सीजन यूज करके, तो CO2 का लेवल हाई हो जाता है। जब CO2 का लेवल हाई होता है तो वहां पे CO2 जो होता है
पानी के साथ जुड़ के कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड वापस क्या बनाता है, H+ और HCO3। ठीक है, तो ये H+ आयंस बहुत सारे निकलते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है, या H आयंस ज्यादा होने का मतलब है लो पीएच या एसिडिटी बढ़ना। आपको पीएच मालूम है, 0 से 7 को हम लो बोलेंगे, 7 के ऊपर जाएंगे जब हम उसको हाई बोलेंगे, तो लो पीएच हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ दिस H आयंस। तब ये कर्व जो होती है वो राइट में शिफ्ट होती है। यहाँ लेफ्ट में आपको देखिए, याद करने के लिए मैंने इजीली आपको पॉइंट्स दिए हैं। कैडेट, कैडेट फेस राइट, जस्ट रिमेंबर दिस, कैडेट फेस राइट। कैडेट यानी क्या, C से कार्बन डाइऑक्साइड, A से एसिडिटी, H+ आयंस जिसकी हमने अभी बात की, D से एक चीज और है डाइफॉस्फोग्लिसरेट। जब ग्लाइकोलिसिस होता है, ब्रेकडाउन, तब ये चीज रिलीज होती है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, तो ये भी बढ़ेगा। और एक्सरसाइज और टेम्परेचर, है ना। जनरली ये शिफ्ट राइट में कब होगा, जब हम एक्सरसाइज करेंगे टिश्यूज में, तो क्या होगा, CO2 इकट्ठा होगा, या आपको मालूम है एनारोबिक रहा तो लैक्टिक एसिड इकट्ठा होगा, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ओके, तो ये नॉर्मल केस का दिखाया है यहाँ पे। उसके बाद यदि हमने उसके बाद इसमें गए हैं, यदि हम राइट शिफ्ट किया है, तो देखोगे यहाँ पे इतनी ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन डिसोसिएट होता है। क्यों, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड वहां ज्यादा हो गया है, एसिडिटी ज्यादा हो गई है, DPG ज्यादा हो गया है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, तो क्या चाहिए, वहां ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो हेमोग्लोबिन सेपरेट होगा ऑक्सीजन से और उसको ऑक्सीजन मिलेगी। तो rise in all these factors shifts the curve towards the right. Cadet face right, remember that. तो cadet से आपको ये factors है, ये आपको MCQ में आ सकता है कि क्या चीज increase या decrease होने से the Bohr effect is applicable or the oxygen curve shifts towards the right. ओके और डिटेल में हम इस पे इजीली समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, वापस से मैंने आपको एक कर्व दिखाई है, जहाँ पे बताया है व्हाई द कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट। क्यों, सबसे पहले पीएच लेवल डिक्रीज होगी, आपको बताया H+ आयंस रिलीज हो रहे हैं, तो पीएच लेवल डिक्रीज होगी। दूसरा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से क्या होगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म होगा, वहां पे CO2 बढ़ेगा और लैक्टिक एसिड बढ़ेगा। So there is increase in H+ concentration causing decrease in the pH level. Decrease in pH level क्या होगा? It changes the hemoglobin structure and decreases the affinity for oxygen. What do you mean by affinity? The liking. तो जो HbO2 था, इसकी अफिनिटी कम कर देगी, कट्टी हो जाएगी Hb और ऑक्सीजन में, और ये सेपरेट हो जाएगा, और ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, टिश्यूज में चला जाएगा। सो दिस इज हेल्पफुल। Therefore, the same partial pressure, more oxygen will be released by the hemoglobin, and this oxygen will be available to the respiring muscles. I hope now it is clear why the curve shifts to the right, and this shifting of the curve towards the right is called as the Bohr effect. इसके अगेंस्ट में एक और है हेल्डेन इफेक्ट। अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, अदर वे से इसको पुट किया तो हेल्डेन इफेक्ट में क्या होता है, लंग्स में ये होता है। लंग्स में आप देखोगे ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है ना, तो ऑक्सीजन को अब हेमोग्लोबिन से अटैच करना है, तो जो CO2 लेके हेमोग्लोबिन आया है लंग्स में एक्सहेल होने को, वो फटाफट ब्रेक होगा और ऑक्सीजन को वो हेमोग्लोबिन ग्रैब करेगा। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स displaces the CO2 from hemoglobin, which increases the removal of CO2. ये आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप ये देखोगे, this is the Haldane effect. Here you can see. Okay, so what it is here, the pH here is opposite to the Bohr effect. The pH will increase, the DPG will decrease, the temperature will decrease, and it will happen in the lungs. Okay. What happens is, just understand that it is the almost vice versa of Bohr effect. Lungs में जहाँ ऑक्सीजन बहुत है, तो वो चाहेगा कि अब मैं हेमोग्लोबिन से अटैच हूँ, तो वो CO2 से हेमोग्लोबिन को सेपरेट करेगा, और यहाँ से जो ऑक्सीजन लंग से अंदर आ रहा है वो इसके साथ अटैच होगा। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड displaces the CO2 from hemoglobin, which increases the removal of CO2. Okay. Now, simplest way is by this table. This table you will not get everywhere. I have made it by combining the different points. Now here there is decrease in the oxygen affinity. Bohr effect सबसे पहले समझ लो, ये tissues में होता है, ये lungs में होता है। यहाँ पे Hb और O2 की कट्टी हो जाती है, और यहाँ पे Hb और O2 जो है वो मिल जाते हैं। ओके,
तो बोहर इफेक्ट जो है वो there is decrease in the oxygen affinity of the pigment like hemoglobin in response to the decreased blood pH resulting from increased carbon dioxide concentration. Carbon dioxide concentration कहाँ बढ़ेगा? जो metabolic tissues हैं वहाँ पे बढ़ेगा, right? It is occurring at the metabolic tissues. तो जैसे ही वहाँ पे CO2 बढ़ेगा तो ऑक्सीजन अफिनिटी जो होगी हेमोग्लोबिन की कम होगी और ऑक्सीजन ब्रेक होके निकल जाएगा. ये सबसे पहले हमको बताया क्रिश्चियन बोहर ने. तो सबसे वहां क्या हो जाएगा? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि CO2 बढ़ गया है, अब हमको चाहिए वहां ऑक्सीजन. और ये कहाँ होगा? लो ब्लड पीएच में. वहां पीएच लो होगा, आपको बताया था कि वहां पे कार्बोनिक एसिड की वजह से H आयंस रिलीज होते हैं. So it is caused by the uptake of carbon dioxide at the metabolizing tissue and it facilitates the release of oxygen at the metabolism टिश्यू. सो यहाँ पे HbO2 सेपरेट होते हैं. हैल्डेन में आपको बताया ये लंग्स में हो रहा है. लंग्स में आपको मालूम है कि ऑक्सीजन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की अफिनिटी जो होती है वो हीमोग्लोबिन से हटा दी जाएगी, डिक्रीज कर दी जाएगी, जिससे कि हीमोग्लोबिन फ्री हो जाए और उसके साथ जाके ऑक्सीजन जुड़ जाए. तो यहाँ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की मित्रता हो जाती है. ये किसने बताया है हमें? हाल्डेन ने, जॉन स्कॉट हाल्डेन ने, which occurs at the lungs and there is release of CO2. Just remember here there is release of oxygen grabbing of CO2 and here there is release of CO2 grabbing of oxygen. This occurs at high pH. It is caused by the uptake of oxygen in the lungs. आपको बताया जैसे ही HbCO2 से सेपरेट होगा ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगा. Facilitates the binding of oxygen to the hemoglobin. फिर से इसको ध्यान से ये आप टेबल को वापस पढ़िए तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. दिस इज अबाउट दी बोहर इफेक्ट एंड हाल्डेन इफेक्ट. MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर दी pH, which is the acidity, and then also about the temperature, etc. After this, we come to the next important point, which is transport of carbon dioxide. Transport of carbon dioxide occurs by various forms. It is by plasma in the solution form. जैसे ऑक्सीजन के साथ हुआ था, 3% जो ऑक्सीजन था वो बहुत इजीली प्लाज्मा में जुड़ के या तो लिक्विड कंटेंट जो ब्लड का है उसमें से डिसॉल्व होके निकल आता है, वैसे ही यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड भी 7% जो है करीब वो वाटर के साथ जुड़ के H2CO3 बनेगा. ये वापस H2O और CO2 बनेगा और ये CO2 जो है वो बाहर चला जाएगा. 70% यानी जो मेजर चंक है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में होता है. ये कार्बोनिक एसिड जो बनता है प्लाज्मा में ये ब्रेक होता है H+ और HCO3 में, या ये आरबीसीज में भी होता है. आरबीसीज में H बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा? ये बाइकार्बोनेट जो होगा प्लाज्मा में सोडियम प्रेजेंट है या पोटेशियम भी प्रेजेंट है उसके साथ जुड़ेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा. और फिर ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा वो लंग्स में जाएगा, वहां पे वापस ये ब्रेक डाउन होगा इनटू Na into CO2 and water. Finally again the same equation will be applying here. And next 23% जो बचता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है. हेमोग्लोबिन के पास भी अफिनिटी होती है और उसको अमीनो ग्रुप से जुड़ता है, नॉट विद द हेम एरिया बट अमीनो ग्रुप से. तो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के रूप में ये 23% ट्रैवल करता है. ओके तो ये आप समझ के लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में होता है. पहला है वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ द प्लाज्मा, इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन. दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड द मेजर चंक जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस का, और तीसरा जो है विद द हेल्प ऑफ hemoglobin as carb amino hemoglobin. Now the same thing is very clearly explained by these two diagrams which is there in your text. Don't panic seeing this so complicated diagram. It is very easy to understand. We'll just start slowly and then you can see how well it has been explained with the help of these diagrams. Now as you can see there are two diagrams there, but there's a little mistake here in figure 8.8. Here they have written oxygen pickup. Actually it is oxygen release and CO2 pickup at the tissue. टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हम दे रहे हैं तो पिकअप की जगह वहां रिलीज आना चाहिए एंड देन देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप. और बाद में ये लंग एल्वियोलाई समय में ठीक लिखा हुआ है. दिस इज ओके. ओके सो नाउ हियर यू कैन सी व्हाट हैपेंस एट द टिश्यू लेवल. हियर यू कैन सी टिश्यू में जो आरबीसीज है ये पूरा ब्लड दिखाया गया है. ये पिंक कलर का जो है ये प्लाज्मा है,
ब्लड प्लाज्मा, और ये जो है ये आरबीसी का सेल है। ये आरबी का सेल के अंदर आपको दिखाया गया है कि कैसे ऑक्सीजन आया है। ऑक्सीजन कैसे आया है? हीमोग्लोबिन से जुड़ के आया है। ये यहाँ पे डिसोसिएट होगा एज ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है मेजर चंक वो टिश्यूज को चला जाएगा। ये जो है ये टिश्यू सेल है, ये आपको दिख ही रहा है। बीच में का फ्लूइड है ये, और यहाँ पे फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एंड देन दिस इज द ब्लड। ओके, सो द मेजर पार्ट इज as HbO2, it will break down into Hb and O2, and this oxygen goes, मोटे एरो से दिखाया गया है कि मेजर चंक जो है वो है 97% इस तरह से जाता है, और जो 3% है वो प्लाज्मा के रूप में डिसॉल्व होके यहाँ पे ऑक्सीजन जाता है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे मिल गया है इनको। ठीक है, ये दोनों पार्ट हो गए। अभी नेक्स्ट है CO2 is to be picked up। अब जो CO2 यहाँ पे बन रहा है इसको हमको पिक करना है। ये भी 3 पार्ट से पिक हो रहा है, जैसे आप देख रहे हो। पहला पार्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में, ऐसा का ऐसा। ये आपने देखा 7% जो करीब है ये डिसॉल्व होके प्लाज्मा में आ जाएगा, और ये धीरे से बाद में जब यहाँ आएगा तो यहाँ से निकल जाएगा एल्वियोलाई से। बाद में थोड़ा परसेंट जो है, यहाँ 23% जो है वो हेमोग्लोबिन से जुड़ेगा। यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन फ्री हुआ है आप देख रहे हो, ये हेमोग्लोबिन से CO2 जुड़ जाएगा और ये बनाएगा कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। ओके, ये 23% हो गया। तो आप ये देख रहे हो सबसे पतला एरो यहाँ का है, जो एक एरो दिखाया है वो है पहला एरो, ये डायरेक्ट हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। ये जो थोड़ा उससे ज्यादा परसेंट है 23%, ये आप देख रहे हो कि ये हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है। जो मेजर चंक है, मोटा वाला एरो जो आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स बना रहा है। अब यहाँ पे दोनों जगह आप ये इक्वेशन देख रहे हो, ये प्लाज्मा में भी देख रहे हो और ये आप आरबीसी में भी देख रहे हो। ओके, अब ये प्लाज्मा में जो है ये स्लो प्रोसेस है। प्लाज्मा में जो पानी का मात्रा है उसके साथ CO2 जुड़ गया है, कार्बोनिक एसिड बना लिया है, बाइकार्बोनेट्स में ब्रेक हुआ है H+ आयंस और HCO3 आयंस में। ओके, और उसके बाद ये HCO3 वापस CO2 और वाटर में ब्रेक हो जाएगा और CO2 निकल जाएगा। बट ये प्रोसेस कैसा है? स्लो प्रोसेस है। जब ये आरबीसी में CO2 चला जाता है तो ये फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां एक एंजाइम प्रेजेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यू नो एंजाइम एक्ट्स एज कैटलिस्ट्स, दे स्पीड अप द रिएक्शन। तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड ब्रेक होगा बाइकार्बोनेट्स में, HCO3 और H+ आयंस में। ठीक है, अभी ये H+ आयंस ज्यादा बढ़ने की वजह से इनका क्या होगा, ये हेमोग्लोबिन जो फ्री हुआ है उसके साथ जुड़ेगा और एक बफर के जैसा ऐड करेगा, रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन बन के, और ये HCO3 आयंस जो है ये बहुत सारे बनने लगेंगे। तो ये HCO3 आयंस भी बाहर जाएंगे। यहाँ जो ये एरो है ये भी गलत दिखाया है, ये एरो इस तरह का होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए, ना कि नहीं। तो ये HCO3 आयंस बाहर निकलेंगे इनटू द प्लाज्मा, क्योंकि इनको सोडियम के साथ जुड़ के सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। और ये बहुत सारे जब HCO3 आयंस बाहर जाएंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ क्लोराइड आयंस अंदर शिफ्ट होंगे। so this is called as the chloride shift। ओके, सो ये एरो जो है यहाँ पे ये बाहर की ओर दिखाई है। तो समझ में आया ये कहाँ पे हो रहा है सब प्रोसेस? टिश्यूज लेवल पे हो रहा है। अभी टिश्यू से सब हो गया, वहां से आपने ऑक्सीजन दे दिया, CO2 आ गया। अब ये इसको कहाँ तक लाना है? आपको लंग्स पे लाना है। अब लंग से ये बाहर फेंका जाएगा। क्या चीज? जो भी आपको CO2 वगैरह वहां पे आया है। अब हमने देखा कि CO2 3 टाइप्स में आया है, तो उसी तरह से वो बाहर जाएगा। बाइकार्बोनेट आयंस जो बाहर आए थे वो अंदर जाएंगे, उसी के प्रोपोर्शन में क्लोराइड आयंस बाहर आ जाएंगे। तो क्लोराइड शिफ्ट बाहर आ गया। अगेन बाइकार्बोनेट आयंस हैं जो कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड के बाद फिर वो ब्रेक डाउन होगा CO2 और H2O वाटर में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, और ये मेजर चंक जो है वो CO2 का लंग्स में या एल्वियोलाई में जाएगा, जहां से ये बाहर रिस्पायर आउट हो जाएगा। बाद में आपने देखा HbCO2 जो 23% बन के आया था आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो निकल आएगा। और कुछ तो नॉर्मली डिसॉल्व होके आया था प्लाज्मा में, तो वो वैसा का वैसा बाहर चला जाएगा। कुछ स्लो प्रोसेस से और कुछ फास्ट प्रोसेस से। तो इसी चीज का रिवर्स जो है वो यहाँ पे हो रहा है। द रिएक्शंस, इसलिए हमने उसको इस तरह से मार्क करते हैं कि 2 वे प्रोसेस है। दूसरा यहाँ से अगेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे आएगा? हेमोग्लोबिन से जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हेमोग्लोबिन को CO2 फ्री करेगा, तो यही हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और HbO2 बन जाएगा।
इस तरह से एल्वियोलाई से जो है 97% ऑक्सीजन HbO2 से जुड़ के अंदर चला जाएगा और 3% जो है वो डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा रहेगा। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं। सिमिलरली यही चीज हमने आपको यहाँ इक्वेशन फॉर्म में बताई है, यही चीज हमने आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में बताई है। Okay, now this has become quite a long lecture. We should stop here and continue with the next slides in the next lecture. Thank you. Just revise, don't panic, you'll understand everything.